Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel Exploring the Concepts. This is biology class, as you all know, and I'm at chapter number 7, which is protists and fungi. And my today's topic is nutrition in fungi. But before discussing the nutrition, I want to discuss some of the structural features of fungus. The fungal body, by the way, some of the students have asked some of the questions related to the fungal structure. So look at this diagram first of all. This is this is a fungi hyphae, right? That single filament is basically called as the hyphae, and it has branched. It has shown some of the branches as well to you, showing that single, I mean, asexual reproduction, through which it can increase in its size, right? So we have seen in this figure, this is a septate hyphae and this is non-septate hyphae or aseptate hyphae. These septate have cross walls, and these hyphae, they do not have the cross walls. They are called as cenocytic hyphae. Over here they have mentioned the term cenocytic hyphae. It is also called as multinucleated hyphae or non-septate or aseptate hyphae, right? So this is the single filament, or you can say have shown some of the small branches. So this is called as a hyphae. As far as mycelium is concerned, this is mycelium. That single structure, that single filament, that single fiber is, by the way, called as hyphae, and the group of hyphae is called as mycelium. Mycelium is actually the fungal body. Mycelium is the fungal body. Look at this diagram. This is a mushroom, right? That mushroom is actually the reproductive part of the Mycota. I have discussed this in another video. And the mushroom is actually the composed form of hyphae, right? So that single branch once again is hyphae, and the group of hyphae is called as mycelium. I think I'm clear with these two terms, hyphae and mycelium. Single branched, single filament, single fiber is hyphae, and the group of hyphae is called mycelium. So this is all about the structure, along with the two terms hyphae and mycelium. I have discussed that this is what is a septate hyphae and what is a non-septate or aseptate hyphae. Now let's start with the today's topic, which is fungal nutrition. So all of you know that fungus is basically a heterotroph, means it is unable to prepare its food on its own. ये खुद से खाना नहीं बना सकेगा. Heterotroph है, but unlike animals and human beings, ingestive नहीं है, right? Absorptive है. मीन्स एब्जॉर्प्टिव से मुराद ये है कि जिस तरह आप ये समझेंगे कोई फोम का टुकड़ा, हम कोई फोम का टुकड़ा पानी में रख दें तो वो फ़ौरन से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा. मीन्स ये भी क्या करता है, ये खाने के दरमियान में पड़ा हुआ होता है, खाने के ऊपर पड़ा हुआ है. जैसे आपने कहीं फंगस लगी देखी होगी ऑन लेमन, ऑन oranges, on bread. So this is an example of growth of fungus, or you can say the absorptive mode of nutrition of fungus, right? So although the fungus is absorptive, so in order to digest the food you need to have a group of enzymes, and fungus is the group of enzyme having numerous enzymes in its body, right? Fungus is an example who have many enzymes. Many of the enzymes are present in this group, and it releases that enzyme on the food and then digests that food. And after digestion, when it is in the form of absorbable conditions, or you can say digestible material, is easily going to enter in its body, right? So what fungus do, it absorb nutrients are then absorbed through the cell membrane, and there are four different types of nutrition we have found in fungus. फंगस को अगर आपको याद है तो डिकम्पोजर्स कहा जाता था. मैं ये टर्म थोड़ी सी डिस्कस करूँगी. इसकी एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी है जिसको हम कहते हैं सेप्रोब्स. आपने कभी रास्ते में कोई कुत्ता बिल्ली, कोई कचरे के ढेर के पास कोई कुत्ता भरा हुआ देखा होगा,
तो एक दो दिन आप पहले दिन आप देखते हैं वो कुत्ता वहाँ पड़ा होता है, लेकिन आस्ता आस्ता आप देखते हैं सिर्फ हड्डियाँ सी रह जाती हैं। शायद आपने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया हो। वैसे तो अब आप थोड़ा सा क्लीनलीनेस के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाता है, तो वो वहाँ पड़ा नहीं रहता, वो हटा लिया जाता है, या इस तरह की डेड बॉडीज़ को हटा दिया जाता है। लेकिन ये नैनी केस अगर शायद किसी ने ऑब्जर्व किया हो कि वो डेड बॉडी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। हम भी तो यही नोटिस करते हैं ना कि हम अपने मुर्दों को दफना देते हैं, लेकिन दफनाने के बावजूद भी जब हम कुछ अरसे बाद कहीं किसी की, जैसे हमने डायनासोर्स की बोन्स के बारे में ये कहते हैं, या पुराने या इंडस वैली जो मिली इन्हें, तो उन वहाँ से जो लोग मिले, वो लोग सॉरी लोग नहीं मिले, उनकी बोन्स मिली, मीन्स कि बॉडी कहीं चली गई, राइट। बॉडी को क्या किया गया, बॉडी को डिकम्पोज होगी बॉडी बेसिकली। इसी तरह कचरा पड़ा होता है तो आपको एक ख़ास किस्म की उसमें से स्मेल आने लगती है, कि आप उससे दूर हो जाते हो। देखो ये कुदरत का निज़ाम है, आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हो, अल्लाह को पता है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ से ऐसी अडर, बेसिकली फंगल एंजाइम्स की स्मेल है, कि वो हमें हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और हम उस बुरी चीज़ से खुद ब खुद उसकी तरफ नहीं जाते। तो ये एक कुदरत का निज़ाम होता है। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है ना, हमारी एज हो गई है, तो हमने इतने सालों में कितनी कितनी मुर्गियाँ खा ली होंगी, कितने आटे की बोरियाँ खा ली होंगी, ऐसा ही है ना। ये सब चीज़ें कहाँ से आई? इसी इन्वायरमेंट से आई, ठीक है ना। तो आपने अगर इस इन्वायरमेंट से जो चीज़ें ली हैं, वो आपने इस इन्वायरमेंट को वापस करनी है। तो वापस करने का क्या तरीका होगा? ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने, वरना तो यूं तो न्यूट्रिएंट तो डिप्लीट हो जाएंगे, तो अल्लाह ने कोई मैकेनिज्म तो रखना था ना, कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो मैंने अपनी लाइफ में इस इन्वायरमेंट से हासिल किए हैं, अपने जाने पे मैं वो सब न्यूट्रिएंट इस इन्वायरमेंट को रिटर्न करके जाऊंगी। तो क्या करेंगे ये फंगस या बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप, जो डिकम्पोजर्स हैं, जो बेसिकली सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में ये टर्म आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। एनीवेज, तो डिकम्पोजर्स बेसिकली टर्म डिस्कस कर रही हूँ मैं यहाँ पे आपके साथ, कि फंगस का ज़्यादातर ग्रुप डिकम्पोजर है, रिसाइकलर्स कहा जाता है इन्हें। तो मैं आपको बता दी कि कोई बंदा जब सारी उम्र खाता रहेगा, तो उसने मरने पे वो सब रिटर्न करना है। तो जो भी हमारी बॉडी है, इट्स अ ग्रुप ऑफ, इट्स कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें कार्बन्स हैं, हाइड्रोजन्स हैं, नाइट्रोजन्स हैं, सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब हमने इसी इन्वायरमेंट से लिया, और हमने ये वापस करना है। और डिकम्पोजर्स आर द एग्जाम्पल एंड आर द वे कि आप ये सब चीज़ें वापस करोगे। वो क्या करेंगे? वो आपकी बॉडी के ऊपर एंजाइम्स सिक्रीट करेंगे, एमाइलेज सिक्रीट करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाएगा, लाइपेज, प्रोटीएजेस, आपको ये सब बात चीज़ें अब मालूम है। वो ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारी स्किन डाइजेस्ट हो जाएगी, और वो हमारी सॉरी बॉडी डाइजेस्ट हो जाएगी। और जो चीज़ें गैशियस फॉर्म में होती हैं वो हवा में चली जाएंगी, जो सॉइल में जानी है सॉलिड फॉर्म में है वो सॉइल में चली जाएंगी। यूँ हर चीज़ आप इन्वायरमेंट को लौटा दोगे, क्योंकि आपके बाद आने वालों को भी तो ये सब चीज़ें चाहिए। और ये करने के लिए, इसी निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने डिकम्पोजर्स पैदा किए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है फंगस। तो फंगस में 4 तरह की न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं, मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी वो न्यूट्रिशंस। आई एम सॉरी। सबसे पहले ये पैरासिटिक, थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है, पता ही होगा वैसे। प्रीडेटरी, म्यूचुअलिस्टिक एंड सेप्रोबियल, राइट। यही फिगर आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। ये सो हीट्रोट्रॉफ्स हैं, कंज्यूमर्स में आते हैं, और एंजाइम्स, एक्सो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, इससे मुराद है एंजाइम्स इनकी बॉडी में वर्किंग नहीं करते, एंजाइम इनकी बॉडी से बाहर वर्किंग करते हैं। वी हैव इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर एंजाइम्स, वाइल फंगस हैव एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, और वो भी वही सेम फंक्शन कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पे वापस आऊँ मैं, तो पैरासिटिक है, पैरासाइट्स हैं। ऑब्वियसली पैरासाइट्स का आपको पता है कि वो किसी लिविंग होस्ट पे सर्वाइव करते हैं, स्पेस लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, फूड लेते हैं, और इन रिटर्न कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर आ जाए, और हम पे कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो जिस भी सेल में रह रहे होते हैं, उस सेल में मैल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। वो उस सेल का फूड लेना शुरू कर देंगे या अपने इस्तेमाल में ले आएंगे, तो हमारे हमें तो डिस्टर्बेंस आएगी ना। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पैरासिटिक फंजाई। फिर ये सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स पे नहीं है, ये प्लांट्स पर हैं, ये एनिमल्स पर हैं।
प्रीडेटरी हैं, ये कुछ ऐसे हैं जो ऑर्गेनिजम्स को मार के खाने वालों में शामिल हैं, मगर ये बहुत कम स्पीशीज़ हैं ऐसी। फिर म्यूचुअलिस्टिक है, म्यूचुअलिस्टिक में आपको पता है दोनों किसी के साथ ऐसे रहना कि उससे भी बेनिफिट हो। तो आपने ये दो टाइप्स पढ़ी थी, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा, ये दो टाइप्स आपने पढ़ी। इसमें फंगस जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स के साथ ग्रुप बना के रहता है। तो वैसे तो पैरासिटिज्म सिम्बियोसिस में ही आता है वो भी, क्योंकि वो भी दो ग्रुप्स के एसोसिएशन है। देन सप्रोबिया जो अभी मैंने डिस्कस की थी डिकम्पोजर्स वाली कहानी, ये सेप्रोट्रॉफ्स है। मीन्स यही फंगस अगर बाहर उस मरी हुई यानी कि वो डेड बॉडी ऑफ डॉग को डाइजेस्ट कर दे तो हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो हमारे फ्रिज में पड़े हुए ऑरेंजेस या ब्रेड के ऊपर आके ग्रो करना शुरू कर दे तो हमें बहुत एतराज़ हो जाता है। सो फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशंस में ग्रो करने वाला है। मीन्स कि वो उसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ग्रो कर जाता है और बहुत लो टेम्परेचर्स पर भी आसानी से ग्रो कर जाता है। एक मॉइस्चर उसकी बेसिक नीड है। आप सिंपल एक ब्रेड या रोटी के टुकड़े को वेट करें, उसको शॉपिंग बैग में डाल के कहीं आटे के डब्बे के पीछे किचन में किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ ज़रा लाइट कम पड़े उसके ऊपर, तो आप 24 आवर्स तो नहीं, खैर 48 आवर्स तो चाहिए ही आपको। 48 आवर्स के बाद आप देखेंगे तो उसमें फंगस की ग्रोथ आ जाएगी, राइजोपस आसानी से उस पर ग्रो कर जाएगा। हालांकि आपने इसमें राइजोपस नहीं डाला, लेकिन आपकी हमारी जो एयर है यहाँ पे इस कदर फंगल स्पोर प्रेजेंट है, वो तो हम इम्यून हो चुके हैं इसलिए हमें वो कुछ इतना इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये फंगस एयर में प्रेजेंट है और ये जैसे ही फूड अवेलेबल होता है ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं अब। एक दफ़ा फिर रिपीट हो रही है ये चीज़। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हीट्रोट्रॉफिक है, सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फीड बाय एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से खाना खाएगा। पैरासाइट्स हैं, फीडिंग ऑन लिविंग क्रिएचर्स। प्रीडेटर्स हैं, पैरालाइजिंग द प्रे को पैरालाइज एज फूड यूज़ करेंगे। डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स। और यहाँ पे बड़ी मज़ेदार बात ये पेंगुइन कह रहे हैं हमें, फंजाई लिव इन देयर फूड, इट्स लाइक यू लिविंग इन चॉकलेट केक। ठीक हो गया, बड़ी प्यारी सी बात मुझे लगी थी ये। और दिस इज़ व्हाट इज़ फंगल हाइफी। आप देख रहे हो ये प्लांट सेल्स के अंदर कैसे पेनिट्रेट कर रहा है। ये फिगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, सो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके साथ भी शेयर करती हूँ। ये बिल्कुल आप देख रहे हो पेनिट्रेट कर गए अंदर। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फंगस विच इज़ गोइंग टू अटैक दैट ट्री। ये भी सैप्रोब्स हैं बाय द वे। और ये हैं जी प्रीडेटर्स, थोड़ी देर में डिस्कस करने वाली हूँ मैं। देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। सो फंजाई में हीटोट्रॉफी सारी कहानी मैंने कर ली है, टेक्स्ट एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लीजिएगा। मेजर जो आपकी किताब में है उनमें सेप्रोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है और प्रीडेटरी है। नाउ सेप्रोट्रॉफिक फंजाई डिकम्पोजर है, डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर मीन्स डेड प्लांट बॉडीज, डेड डेड एनिमल बॉडीज, और एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, और डिकेइंग मैटर मीन्स जो गल सड़ रहा होता है उसके ऊपर। तभी कचरे में से मेरे को बता दें, कचरा को डिकम्पोज करना, अगर वो ऑर्गेनिक है तो फंगस उसको बड़ी आसानी से डिकम्पोज कर देगा। ब्लेसिंग है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्लीनर्स हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के। अच्छा, anyways, a saprotroph is an organism that obtains its nutrient from non-living organic matter, usually dead and decaying plant or animal matter, by absorbing soluble organic amount. Beautiful definition है and complete definition as well. सही है जी, बायो जियोकेमिकल साइकिल को complete करने वाले हैं, रिसाइकलर्स हैं। और यहाँ पे मशरूम्स वगैरह का जिक्र हुआ है, वो भी सेप्रोट्रॉफ्स में शामिल हैं और रिसाइकिल करते हैं। ओके, पैरासिटिक फंजाई पे आते हैं। इससे पहले मैं आपको सेप्रोट्रॉफ्स दिखा दूँ। ये एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। ये ये आप देख रहे हो ब्रेड को दो तीन किस्म के फंगस लगे हुए हैं बेसिकली। और ये है सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर लग जाते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है, ये सॉरी ये जो मशरूम्स हैं ये भी सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, इसमें ज़्यादातर सेप्रोट्रॉफ्स हैं। हाँ, कुछ ऐसे ज़रूर हैं कि जिन्हें टोड स्टूल्स कहा जाता है, वो पॉइजनस होते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादातर सेप्रोट्रॉफ्स हैं। थोड़ी देर में सब पैरासिटिक फंजाई डिस्कस करने वाली हूँ, बल्कि नेक्स्ट पैरासिटिक फंजाई ही है। ये जो फिगर है ये रस्ट की है, हमने पढ़े थे रस्ट और स्मट्स थे बेसिडियोमाइकोटा में।
ये रस्ट की एक है, ये ऑरेंज कलर की चूंकि होती है फंगस, इस वजह से इसका नाम और ये डिजीज़ कॉज करते हैं, पैथोजेनिक हैं, पैरासाइट्स हैं, और इसलिए हमने इसका नाम रस्ट रख दिया है। एक और बल्कि दो और एग्जांपल्स हैं, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी, ये दोनों एग्जांपल्स हैं। पाउडरी की मैंने बेसिडियो माइकोटा में भी आपको फिगर्स दिखाई थी कि पूरा पत्ता पाउडर पाउडर वाइट पाउडर से उसके ऊपर कुछ पड़ा हुआ था। एंड बोथ ऑफ द एग्जांपल्स आर बाय द वे पैरासिटिक फंगस। ठीक है, पैरासाइट्स हैं, बहुत ख़तरनाक पैरासाइट्स में शामिल हैं प्लांट्स के हवाले से। अच्छा जी, इसके बाद आप एज पैरासाइट्स फंजाई लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट। सारा फूड ले लेंगे और डिजीज़ कॉज कर देंगे। और सिम्बियोटिक में भी शामिल है, लेकिन हार्मफुल एसोसिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपकी किताब में शो हुई हुई है, एक हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या होते हैं? हॉस्टोरिया बेटे ये राइजोइडल हाइफी होते हैं, मगर जो पैरासिटिक फंगस हैं उनके राइजोइडल हाइफी का नाम है हॉस्टोरिया, राइट? द राइजोइडल hyphae which are present in parasitic fungi are called as haustoria. Now I'm going to discuss some two other terms. One of them is obligate parasite, another is facultative parasite. ठीक है, तो इस ग्रुप में ज़्यादातर फंगस फैकल्टेटिव हैं, अपना होस्ट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो वो फ्री लिविंग लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उनको उनका होस्ट मिले, क्यों? क्योंकि ये किसी होस्ट के ऊपर इनकी लाइफ डिपेंड नहीं करती। तो ऑब्लाइक ये टर्म आपने पढ़ी थी, एक दफ़ा पहले पढ़ चुके हो। ये टर्म आप लोगों ने पढ़ी थी वायरसेस में। viruses are obligate parasite, means they have no options, they just have a one way of life, and that is to be in someone's body, means they need a host in at all costs, right? तो इसको तमाम तरह इनके हर हाल में इनको होस्ट चाहिए ही चाहिए। ऑब्लाइगेट पैरासाइट्स हैं, मीन्स कोई ऑप्शन ही नहीं है पैरासाइट होने के अलावा। ठीक है, सो ऑल वायरसेस आर ऑब्लाइगेट पैरासाइट्स बिकॉज दे कैन नॉट लिव विदाउट host, while fungus and bacteria, both of them are the parasites, but can be the parasite, I mean, but can be facultative and can be pathogenic. If they got the chance to get into their host body, then they will cause you the diseases. Otherwise they can live a free living life as well. सो ये दो टर्म्स थी पैरासिटिक फंगस वाले पैराग्राफ में। टेक्स्ट रीड कर लिएगा, कोई मसला हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है प्रीडेटरी फंगस में एक्टिव प्रीडेटर्स है। प्रीडेटर्स आपको पता है ना, लायंस वगैरह को प्रीडेटर्स कहा जाता है कि वो क्या करते हैं, अपने फूड को किल करते हैं और फिर खाते हैं। हाँ, तो ये भी क्या करने वाले हैं, कुछ इसी किस्म की हरकत करने वाले हैं। बेसिकली ये उन फंगस की बात है जो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन नॉर्मली उन्हें आसानी से नहीं मिल रही, राइट? और जिस तरह ये छोटी छोटी मक्खियाँ शायद आपने देखा कि घर में फ्रूट्स आए हुए हैं, स्पेशली केला वगैरह, तो कोई छोटी सी मक्खी उन पे आनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रोसोफिला। बेसिकली ड्रोसोफिला इसलिए आती है कि केले के ऊपर एक ख़ास किस्म की फंगस लगती है, उसे खाने आती है। इसी तरह नीमाटोड्स भी वहाँ ग्रो कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट आर नीमाटोड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, नीमाटोड्स ये वो है राउंड वॉर्म्स इन्हें बोलते हैं। राउंड वॉर्म्स एंड नीमाटोड्स की निशानी ये होती है कि इनकी बॉडी दोनों एंड से पॉइंटेड होती है, राइट? पतले अर्थफॉर्म की तरह पतले लंबे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं जैसे एस्कैरिस, लेकिन बॉडी के दोनों एंड्स ना बिल्कुल पॉइंटेड होंगे। सॉरी, मैंने निमाटोड एक है मेरे पास यहाँ तस्वीर में, तो ये नेक्स्ट फिगर में देखो, ये देखो, ये जो येलो से नज़र आ रहे हैं ना, ये नीमाटोड्स हैं। और ये जो लाइट ब्लू से आपको नज़र आ रहे हैं, ये फंगस हैं। अब प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि नीमाटोड शायद इस कलर का होता है और फंगस शायद इस कलर की होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। असल इलेक्ट्रॉन जो सॉरी असल जो माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ थी वो इस तरह की आती है, ब्लैक एंड वाइट सी। ठीक है ना, मतलब आई मीन इसमें कलर्स नहीं होते, ये कलर्स बाद में कर दिए जाते हैं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको। ठीक है, सो जो नीमाटोड है वो इस तरह का होता है। और एक फिगर जो शायद आगे बुक में है, बल्कि पुरानी बुक्स में तो थी ये, दिस वन नीमाटोड। नीमाटोड की बॉडी मैंने आपको बताया कि एंड से पॉइंटेड होती है और होता वॉर्म लाइक है, राइट? हेलमेंट्स कहते हैं इनको, वॉर्म लाइक बॉडी मतलब। और ये पैरासाइट्स ही होते हैं, और ये लेकिन कभी ऐसे ग्रो कर रहे होते हैं, सॉइल नीमाटोड्स की बात है, उनकी बात है कि उन्हें नहीं कोई होस्ट मिल रहा तो ये सॉइल वगैरह में ग्रो करने लग जाते हैं। ये इस फंगस को एज फूड यूज़ करते हैं।
लेकिन फंगस बाय द चांस उसे मौका मिल जाता है और वो ग्रो करते करते इसको कंस्ट्रक्ट कर देता है, इसकी जो बॉडी है कहीं से भी वैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और कंस्ट्रक्ट अगर कर दे नॉर्मली उसकी जो जहाँ से उसकी बॉडी का हेड रीजन होता है वहाँ से अगर कंस्ट्रक्ट कर दे तो उसकी जल्दी डेथ हो जाती है और फिर इसको नाइट्रोजन के सोर्स के लिए ये लेता है। हालांकि ये असल में अभी तक ये कर रहा था कि इसको फूड चाहिए था, तो फंगस इसको जैसे फंगस किसी ग्रो वुड पे ग्रो कर रहा है सपोज करें, या किसी और चीज़ पे ग्रो कर रहा है, तो उसको तोड़ फोड़ के वहाँ से ग्लूकोज अवेलेबल करके दे रहा था नीमाटोड को। लेकिन लेटर ऑन उसका ही प्रीडेटर बन गया, उसको मार दिया और मार के उसको इसने खा लिया समझे। अच्छा, इसमें बहुत दिन लगने वाले हैं ऑब्वियसली। सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर्स, द ऑयस्टर मशरूम ओमनीवोरस प्रीडेटरी फंगस, यानी कि जो ऑयस्टर मशरूम्स हैं वो ओमनीवोरस हैं, मीन्स कि वो जो और तरह की फूड, हर तरह की फूड खा लेते हैं, इसका मतलब ये है। मीन्स हमारी तरह है ना, मीट भी खा लिया और वो भी। सो इट पैरालाइजेज द नेमाटोड्स दैट फीड ऑन दैट फंगस, यानी कि वो उसी का फूड था। पेनिट्रेट them and absorb their nutritional content primarily to fulfill its glucose नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, ये उसको हेल्प कर रहा था। लेकिन सम स्पीसीज, हाँ एक और है आर्थ्रोबोइट्रिस ट्रैप सॉइल, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो भी फिगर दिखाई कंस्ट्रक्शन रिंग वाली, ये आर्थ्रोबोइट्रिस है। ये सॉइल निमाटोड को उसने कंस्ट्रक्टिंग रिंग बना दिया और उसके हाइफी को फिर उसने हाइफी के थ्रू उसको कंस्ट्रक्टिंग रिंग बना के उसको किल कर दिया। और फिर आस्ते आस्ते उसको डाइजेस्ट करके खा लेगा। मैंने आपको बताया उसको नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए। और ये बहुत सारे हैं, हर एक के अंदर किसी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की अडेप्टशंस हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द न्यूट्रिशन इन फंगस। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। जिस तरह नशमिया वगैरह क्वेश्चन आसानी से पूछ लेते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। तो जो भी क्वेश्चंस हों आप फ्रीली, यू आर फ्री, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत ध्यान से अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, बिकॉज़ यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।